السلام علیکم۔ آج کی ایک خوفناک دل دہلا دینے والی کہانی، ایک ایسی پراسرار کہانی اور ایک خوفناک راز جو آپ کی پیش خدمت ہے۔ کار میں 4 دوست کچے کے راستے ہوتے ہوئے تفریح کے مقصد سے اپنے ہی آباء و اجداد کے فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ سلطان فارم ہاؤس کے آنر کا بیٹا، سلطان کا باپ شیر خان تھا۔ یہ لوگ کینیڈا کے رہائشی تھے۔ اپنے آباء و اجداد کی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے سال میں ایک دفعہ آیا کرتے۔ شیر خان کے 6 بیٹے تھے۔ سلطان سب میں چھوٹا تھا، ابھی اس کی شادی نہ ہوئی تھی۔ باقی 5 بیٹے شادی کر کے کینیڈا میں ہی رہتے تھے۔ انہیں پاکستان کے اس جگہ سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، بس اپنی زندگی کو وہیں ہی جی رہے تھے، جبکہ سلطان اپنے والد صاحب کا بھرپور ساتھ دیتا۔ سلطان کے باپ کی عمر لگ بھگ اس وقت 65 سے 60 سال کی تھی۔ سلطان کار ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ تینوں دوست اپنے گانوں میں ہینڈ فری لگا کر خوب سانگز انجوائے کر رہے تھے۔ انہیں قریب قریب کے موسم بگڑنے کی خبر تک نہ ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی کار کے چاروں دروازوں پر بلیک گلاس جو لگا رکھے تھے۔ اب سامنے ان کی اتنی خاطر خواہ نظر نہ جاتی تھی، بس سلطان ہی فوکسلی ڈرائیو کر رہا تھا کہ جب موسم بگڑنے لگا، سلطان کو احساس ہوا کہ رات کے اس وقت شاید موسم خراب ہو چکا ہے۔ درختوں سے پتے سرسرا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے شاید جھگڑ سا آ گیا ہو۔ آہستہ آہستہ کچی مٹی ہوا میں اڑنے لگی، بگولی سے بننے لگے اور شاید آندھی آ گئی تھی۔ سلطان نے کار ایک جگہ ایک بڑے سے درخت کے نیچے روک دی تھی۔ ابھی ان کا فارم ہاؤس خاصا دوری پر تھا، قریب قریب یہ شاید ایک چھوٹا سا جنگل تھا، جہاں اچانک موسم خراب ہوا۔ تینوں دوست کانوں سے ہینڈ فری نکال چکے تھے اور سلطان سے باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سلطان نے تینوں دوستوں کو کہا، عرفان کام ڈاؤن، کچھ نہیں ہوتا، کچھ دیر یہاں اسٹے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر موسم یوں ہی خراب رہا ہو سکتا ہے کہ ہمیں رات کار میں گزارنی پڑ جائے۔ لیکن وہیں پر ہی تیمور بول پڑا، نہ بابا نہ، کار کے اندر بہت مشکل ہو جائے گی، میرے ویسے ہی سر میں اتنا شدید درد تھا، میرے تو آنے کا بھی آج موڈ ہی نہ تھا، لیکن سلطان میں فارم ہاؤس کی ٹرپ مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہیں پر عرفان پھر بولا اٹھا، کوئی بات نہیں، جتنا ہو سکے ہم یہاں اسٹے کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچانک آسمان سے بادل گرجا تھا اور ایک بڑی سی بجلی شاید کہیں دور گری تھی۔ کار ہیڈ لائٹس آن تھی اور دور تک جاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ پورا روڈ سناٹے میں ڈوبا ہوا۔ وقت 11:30 بجے تھے۔ اچانک تیمور کو حاجت پیش آنے لگی۔ اس نے اپنا پیٹ پکڑ لیا، سلطان میں کار سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں جانے دیتا، بس اب کنٹرول نہیں ہوتا، میں جانا چاہتا ہوں۔ سلطان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ کار کھول کر اب بڑے سے درخت کے پیچھے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بارش نے آ گھیرا۔ سلطان پریشان ہونے لگا، عرفان جا کے دیکھو تو یہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔
वहीं पर ही शामिर बोल पड़ा, तुम ठहरो, मैं देख कर आता हूँ, खासी देर हो गई है इसको। मोटी मोटी बूंदे दरवाजा खोलते ही शामिर की सर को गीला करने लगी। एकदम उसने दरवाजा बंद किया। यार, ठंडी बारिश हो रही है, मौसम भी तो हल्का ठंडा है। हाँ, लेकिन वो भी भीग गया होगा, मैं देखता हूँ। हमने तो अम्ब्रेला वगैरह कुछ भी नहीं रखी, साथ ही एक प्लास्टिक की शीट रखी थी बैक साइड पर। शामिर ने उसे अपने सर पर ढका और दोबारा दरवाजा खोलकर बाहर की जानिब चला गया। इरफान, मोबाइल की टॉर्च जरा दरख्त तक तो मारो। हाँ हाँ, मैं करता हूँ, ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता अब दरख्त के पीछे जाने लगा। अचानक शामिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से पीछे होने लगा और कार तक आ गया। सुल्तान, तैमूर नहीं है? क्या मतलब? अंदर चला गया होगा। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, खासी गहरी झाड़ियां हैं और दूसरा दरख्त भी बहुत दूर है। अब तो इरफान और सुल्तान दोनों बाहर आ गए थे। बारिश आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखा रही थी। हवाओं का जोर बढ़ता जा रहा था। कच्ची मिट्टी बारिश के पड़ने से दब गई थी। अब हवा में मिट्टी का जोर भी न था। दूर से आती कुत्तों की आवाजें माहौल में खौफ पैदा कर रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से होशरुबा चीख ने तीनों के दिल दहला दिए थे। ऐसा लग रहा था कोई तैमूर को घसीट रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ, सुल्तान, शामिर, इरफान, ये मुझे घसीटे ले जा रही है, मुझे बचा लो। इतना कहना था कि सुल्तान वापस कार की जानिब दौड़ा। उसने पिस्तौल हाथ में ली। क्या हुआ, किधर हो? फिर एक चीख आई, शायद सीधे जानिब। वो झाड़ियों के अंदर दाखिल हो चुके थे। उन्हें सिर्फ दूर तक चीख ही सुनाई दी थी, तैमूर नहीं। तीनों बहुत परेशान हो गए थे। चलते चलते वो झाड़ियों से बाहर आ गए, लेकिन तैमूर का पता न था। अभी कुछ ही देर न गुजरी थी कि उन्हें बहुत दूर से तैमूर की आवाज आती हुई सुनाई दी। सुल्तान, शामिर, कहाँ हो, कहाँ हो? अचानक तीनों दोस्त ठनक गए। अब वो वक्त जाया किए बिना बहुत तेजी से एक दूसरे का हाथ पकड़े झाड़ियों के अंदर दाखिल हो गए थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बुरी तरीके से भीग चुके थे। जैसे ही वो कार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा तैमूर कार के अंदर बैठा है और उस पर कपकपी सी तारी है। तीनों कार के अंदर बैठे। उन्हें तो ये भी होश न था कि सीटें गीली हो गई हैं। सुल्तान ने तैमूर को हाथ लगाया। तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं कब से यहाँ बैठा तुम तीनों का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम तीनों कहाँ चले गए थे? वो तीनों अब खामोश, उनके अंदर काटो खून न था। वो तुम्हें ही देखने गए थे? मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ। जब मैं आया तो तुम तीनों न थे। अजय पहली वाला माहौल हो गया था। अचानक उन्हें ऐसा लगा कोई हंसा है। सुल्तान ने वो हंसी की आवाज वाज़ेह सुनी थी, कोई नस्वानी हंसी। इरफान वहीं बोल उठा, ये जगह ठीक नहीं लगती मुझे, प्लीज सुल्तान कार स्टार्ट करो, आगे चलते हैं। सुल्तान ने बिला ताखिर कार दोबारा स्टार्ट की और अब सीधे आगे जाने लगा। बारिश थम गई थी। माहौल खासा खौफनाक और दिल दहला देने वाला हो गया था। हूका सन्नाटा, गहरा अंधेरा और उस अंधेरे को चीरती हुई कार की
हेडलाइट की रोशनी सामने पड़ती जाती और रास्ता साफ होता जाता। अचानक सुल्तान की नजरों से तेजी से कोई सफेद हेवला गुजरा। सुल्तान ने वापस कार ब्रेक लगा दी। क्या हुआ सुल्तान, कार क्यों रोक दी? कुछ नहीं, ऐसा लगा शायद कोई बच्चा कार के आगे आ गया हो। बच्चा? और ऐसे रास्ते में जहां करीब करीब दरख्त और झाड़ियां हैं, दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं देता। फार्म हाउस पहुंचने भी लगभग 20 मिनट रह गए होंगे। तो बच्चा, अरे भाई, हम इस इलाके से वाकिफ तो नहीं। ये तो एक सड़क है, लंबी खामोश सड़क। करीब करीब हो सकता है कोई घर हो। अच्छा, तुम यहाँ ठहरो, मैं कार से उतरकर अभी देख कर आता हूँ, शामिर बोला। नहीं नहीं शामिर, प्लीज कार के अंदर रहो, मैं देख कर आता हूँ। इरफान ने दरवाजा खोला। वो सुल्तान के बराबर में ही सीट पर बैठा था। दरवाजा खुला और आहिस्ता आहिस्ता कार के फ्रंट पर आ चुका था वो। तब वो मुस्कुराया। सुल्तान, लगता है तुम्हारी आंखों का धोखा था। वो दूसरी जानिब से घूमता हुआ सुल्तान के पास आकर उसे कहने लगा। ऐसा कैसे धोखा? चलो, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। आओ कार में बैठो, सफर कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से सफर 10 मिनट गुजर रहे थे। खामोशी से सफर हो रहा था। चारों एकदम खामोश बैठे थे, क्योंकि अभी तक उनके हवास बहाल ना हुए थे और वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जब वो तैमूर से पूछे कि तुमने इतना भयानक मजाक हमारे साथ क्यों किया, तुम क्यों चीखे थे और झाड़ियों में क्यों भागे थे। ये एक खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर था जब वो तीनों अपने दिल को कंट्रोल करते हुए एक दूसरे की सपोर्ट से हाथ में गन लिए झाड़ियों में जा घुसे थे। और जब वापस आए तो तैमूर कार के अंदर था। तीनों वक्फे वक्फे से तैमूर की जानिब देखते और तैमूर खामोश नजरों से अंदर जंगल की तारीकी को घूर रहा था। लो भाई, आ चुका है हमारा फार्म हाउस। चौकीदार चारों दोस्तों का इंतजार कर रहा था। चारों को वार्म वेलकम किया। सलाम दुआ करने के बाद दरवाजा खोला और भागकर उनसे उनका सामान ले लिया। 2 मुलाजिम और आ गए थे। तीनों मुलाजिम इनका सामान लेते हुए इनको कमरे तक पहुंचाया। खासा बड़ा फार्म हाउस है। हाँ, है तो खासा बड़ा फार्म हाउस। तुम्हारे वालिद साहब ने यहाँ घोड़े भी पाल रखे हैं। हाँ, मेरे अब्बू जी को घोड़े बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर वो कनाडा में क्या कर रहे हैं? शामिर ने चुटकी ली। बस तुम भी ना। वो अंदर कमरे में जा चुके थे सस्ताने के लिए। चारों एक ही बेड पर दराज हो गए थे। वक्त 2:30 बज रहा था। थोड़ी देर न गुजरी थी कि खाना आ चुका था। चारों ने सैर होकर खाना खाया और अब सुल्तान खामोशी से खड़ा हुआ। तैमूर के सामने जा खड़ा हुआ। तैमूर, तुमने हमारे साथ जो भी ये मजाक किया मुझे पसंद नहीं आया। तैमूर खामोश था। कैसा मजाक? इरफान ने सारी बात बताई। तब तैमूर खड़ा हो चुका था। तैमूर बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं खामोशी से रफा हाजत करने के बाद झाड़ियों के अंदर से क्रॉस होते हुए जब कार तक पहुंचा तो तुम तीनों न थे। मैं कार के अंदर ही बैठ गया। मैंने सोचा शायद तुम तीनों भी रफा हाजत के लिए झाड़ियों में गए होगे। और फिर एकदम से बारिश तेज हो गई। मैंने कानों में हैंड फ्री लगाई और गाना सुनने लगा। थोड़ी देर बाद तुम तीनों भी आ गए।
अब तो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तैमूर, भला की एक्टिंग कर लेते हो। एक तो तुमने हमें डराया, चीखे चिल्लाए, मदद की दुहाइयां लगाई, और फिर आगे तक। नहीं नहीं, अम्मी की कसम, तुम तीनों की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो मेरे बाल सही है, और देखो मेरा खुलिया भी सही है। अगर मैं घसीटा जाता तो मेरे कपड़े तो गंदे होते। अब तीनों एक दूसरे को वाकई में देखने लगे थे। तो क्या किसी ने हमारे साथ कुछ हरकत की है? हो सकता है कि वहां कुछ ऐसा वैसा हो। इतनी देर में फार्म हाउस का चौकीदार उनकी बातें सुन के उनके पास आ चुका था। जनाब सुल्तान साहब, मैं यहाँ से कुछ कहना चाहता हूँ। जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते पर एक डायन का वास है। सुना है कि वो डायन रास्ते में लोगों को घेरती है, वे जाल में फंसाती है, और अगर कोई उनके जाल से बच जाए तो वेलकम, और अगर ना बचे तो उन्हें मार गिराती है। काफी लाशें आए दिन वहां मिल रही होती हैं। अब तो लोगों ने वो रास्ता भी छोड़ दिया। चारों दोस्तों को झुरझुरी सी चढ़ गई थी। तो क्या हम बच के लौटे हैं? तो क्या ये सब अल्लाह की मेहरबानी है? अब तो सुल्तान बहुत ज्यादा डर गया था। ये सारा हादसा उनके साथ अचानक ही हुआ था। फिर इरफान ने चौकीदार से बात करना शुरू की। डायन का क्या मामला है? कुछ दिनों की बात है, यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक औरत काला इल्म करती थी। उस औरत ने इलाके के खासे बच्चों को मार गिराया था, और ऐसे नहीं मारा था, बल्कायदा अगवा करती उनका खून पीती थी। न जाने वो कितना ज्यादा काला इल्म सीखना चाह रही थी। और ये बात जब पूरे गांव में फैली कि बच्चे अगवा होने लगे हैं, और जब किसी ने इस बात का अंदाजा लगाया कि एक औरत जो बीच झाड़ियों के पीछे एक छोटे से घर में रहती है, हो ना हो वहां कोई ऐसी चीज तो रूनुमा हुई है कि वो औरत अकेली बीच जंगल में रहती है और वहां कोई आता जाता नहीं है। चंद लड़कों ने जब उस औरत को वहां छेड़ने की कोशिश की, उसके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की, वो बहुत खूबसूरत थी और पूरा गांव ये बात जानता था कि वो तन्हा रहती है। तो फिर ये बच्चा अगवा करने की बात कैसे पता चली? वही मैं आपको बता रहा हूँ। जब कुछ लड़के रात को उसके घर में बुरी नीयत से कूद पड़े, तो जब उन्होंने देखा कि वो किस तरह बच्चों का मांस खा रही थी, और एकदम जब उन लड़कों पर उस डायन की नजर पड़ी, तो वो डायन ने वो लड़के भी चीर फाड़े थे। उनमें से एक बच निकला था। जिसे तैसे वो गांव पहुंचा, उसने वहां शोर मचा दिया था। उसने बताया कि जो बीच झाड़ियों में वो छोटा कच्चा मकान है जहां वो औरत तन्हा रहती है, उसने मेरे बाकी दोस्तों को भी मार दिया है, और उससे पहले वो एक बच्चे का दिल निकाल के खा रही थी। ये सुनना था कि गांव के तमाम आदमी इकट्ठे होके हाथों में मशाले लिए उस घर की जानिब चल पड़े थे। वो औरत अब भी उन लड़कों का मांस खाने में मसरूफ थी। लहू लुहान हो चुकी थी। उसका चेहरा इंतहाई बिगड़ा और करीहा था। उसके लंबे लंबे नाखून डरा देने वाले थे। काला लंबा लिबास वो इतनी हैबतनाक थी कि जब उसने पलट के गांव के आदमियों को देखा तो बहुत भयानक चीख मारी थी और उछलकर मकान के ऊपर जा बैठी। वो चिल्ला रही थी, यहां से चले जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। लेकिन उनमें से कुछ बहादुर नौजवान जिनके हाथों में मशाले थी, वो जैसे तैसे मकान के ऊपर चढ़े और उस डायन को आग लगा दी थी। वो डायन तो जल के मर चुकी है, लेकिन सुना है वो भटकती है, और हो सकता है कि आप चारों भी
اسی کے چنگل سے بچ کے آ رہے ہیں. یہ سننا تھا. سلطان اور عرفان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. اچانک ہواؤں کا شور بڑھنے لگا. بادل پھر سے گرجنے لگے اور بارش شروع ہو چکی تھی. آج کی رات کافی طویل تھی، لیکن صبح ہوتے ہی ناشتہ کرنے کے بعد چاروں دوست فارم ہاؤس سے اپنے گھر کی جانب نکل گئے تھے. اب ان کے لیے وہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا. سلطان کچھ ٹائم تک تو اپنے آبائی گاؤں کی حویلی میں رہا اور پھر وہ واپس کینیڈا لوٹ گیا. اس نے اپنے ابو سے کی بہت منتیں سماجی طے کر کے وہ فارم ہاؤس تو بکوا دیا تھا، لیکن اب پلٹ کر کبھی بھی وہ اس راستے نہ گیا. وہ آج بھی پاکستان آتا ہے، اپنی خوبصورت وادی سوات آتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، لیکن اس خوفناک راستے کی طرف آج نہیں جاتا.